Hello, my dear friends. I am Professor Vayam Khan, and today, in our subject of materials and metallurgy, we are going to continue the unit number 2, that is phase diagram. And in today's video, we are going to study the eutectic type of phase diagram. It is also known as eutectic system. All of you know that the meaning of eutectic alloy or eutectic system is when two metals when two metals are completely soluble in a liquid state and they are completely insoluble in solid state. Such a kind of alloy is called as eutectic. It's called as eutectic alloy. Okay, such a kind of alloy is called as eutectic alloy. Now we have seen the eutectic transformation in previous unit, and in that eutectic transformation you have seen that a liquid, that is the mixture of this uh, two metals, that is the mixture of two metals, say A and B, if it is in liquid state, okay, and if this mixture is cooled with some medium, or the cooling or solidification process is performed on this mixture, or you can say on this liquid, and if the phase S1 as well as phase S2 appears in solid state, okay, that means the metal A has been solidified in S1 state, and metal B has been solidified in S2 state, then such a kind of transformation is called as eutectic transformation. Okay, remember only this thing, that a liquid when solidified, okay, and if it shows or there appears two solid phases, then such a kind of transformation, such a kind of reaction, such a kind of system is called as eutectic system. Okay, now this transformation, this specific transformation happens for a specific composition. That means to happen this eutectic transformation, to complete this eutectic transformation, the metals which are mixed together, they should have a specific amount, in they should be mixed with a specific amount, and at that time only eutectic transformation can happen. Okay, so if you see this diagram, this diagram shows a eutectic type of system where we are mixing two metals, say A and B. So this is your A metal and this is your B metal. Now A here at this point is 100%, that means that is the pure metal A, and B at this point is 100%, that means B is pure metal at that specific point. So as you go on this side, the percentage of B is increasing. That means we are adding B alloying element, that is your alloying element, into the parent metal. Say this is a parent metal, this is your alloying element or alloying metal. So we are adding alloying metal to the parent element. Okay, so parent metal, that means the percentage of B is going on increasing on this side. Now if you see this specific point, this specific point is also denoted as E, because this is your eutectic transformation point. This is the eutectic transformation point, because this is a percentage, that is your ZE. So if B with ZE percentage, B with ZE percentage, if it is mixed in alloy, in metal A, then at this temperature, say temperature T, the eutectic transformation happens. Okay, for this specific diagram you can see this is the point where
this specific reaction is happening because of percentage of B, ZE percentage. We are taking this percentage as ZE. Say if I use, instead of ZE, if I use say 8%. So for 8% of B at temperature T, the eutectic transformation happens. Now how this transformation happens, if you see this dotted line drawn here, it says this is point number 1 where your mixture is in liquid form. Okay, now at this point E, or say this is point number 2, at this point 2 the metal is solidifying. Okay, the liquid is cooling. The downward line on this diagram means that the temperature is reducing. We are reducing the temperature. Therefore, at this point 2, the solidification process of this alloy starts. Okay, and from this point you start to see the two different phases that are present in this alloy. Say there we will see the first phase, that is solid of A, and again we'll see phase of solid B. Okay, now this eutectic means the mixture of two, the mixture of these two. Okay, now this happens at point 2, and as you go on decreasing, the amount of these phases increases. That means more number of solid is being produced during the solidification प्रोसेस. ओके, ज़्यादा अमाउंट का सॉलिड वहाँ पर क्या होते जाता है, बनते जाता है. यहाँ पर कुछ अमाउंट सॉलिड रहेगा, यहाँ पर उससे ज़्यादा सॉलिड रहेगा, यहाँ उससे ज़्यादा रहेगा. दिस इज़ द रूम टेम्परेचर, जहाँ पे आपका पूरा की पूरा मिक्सचर विल बी इन एन अलॉय स्टेट. वो अलॉय के फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन. एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, कंपोजिशन पे होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है. ओके, सो इसको अगर मैं TE बोलूँ, सो दिस विल बी योर टेम्परेचर ऑफ यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. इसको अगर मैं ZE बोलूँ, सो दिस विल बी योर कंपोजिशन of eutectic transformation, and this is your E, that is the point where the eutectic transformation is happening. Okay, now if suppose the percentage of alloy is less than this ZE percentage, that means you have added less amount of B as compared with the eutectic composition. से ZE से आपने कम 8% से आपने क्या किया है, कम उसके अंदर B को ऐड किया है. अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देयर विल ऑल्सो बी सम यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट इसका जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर्ड विद दिस वन. से दिस इज अनदर लाइन, दिस इज पॉइंट 1 वेयर मेटल इज इन, अलॉय इज इन लिक्विड स्टेट. जो भी अलॉय है वो लिक्विड स्टेट में है. ये है पॉइंट 2 जो ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रहा है. ओके, ये है पॉइंट 3, एंड दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 4 वेयर द कंपोजिशन से इज़ 4%. यहाँ पर समझ लो कि 4% क्या है, हमारा कंपोजिशन है. 4% B हमने उसके अंदर मिक्स किया है. अब ऐसे प्रोसेस में 1 से 2 में मेटल क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा. 2 से 3 जो फॉर्म है, 2 से 3 जो स्टेज है, इसमें हमारा A जो है, मेटल A, बिकॉज दिस इज़ प्री डोमिनेंट हेयर, A का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर A का जो फेज़ है वो जल्दी अपीयर होना शुरू होगा. दैट्स वाई यू विल सी द सॉलिड स्टेट 1, S1 जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखना शुरुआत करोगे. दैट विल बी योर A विच विल बी सीन एट बिगिनिंग. जो बिगिनिंग रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपको A जल्दी नज़र आएगा. ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर आपका लिक्विड रहेगा. नाउ दिस लिक्विड इज़ व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ A एंड B. A और B का क्या है, वो मिक्सचर है. सो इट विल बी लिक्विड, इट विल बी इन अ लिक्विड स्टेट. नाउ दिस इज योर यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर TE. नाउ बिलो दिस टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉलिड इज गोइंग टू इंक्रीज. सॉलिड का जो अमाउंट है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. ओके, अभी जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, ओके, वैसे वैसे A का अमाउंट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ में
ये जो लिक्विड मिक्सचर है जिसमें A+B है, इस लिक्विड मिक्सचर का भी क्या होते जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता जाएगा और आपको वहाँ पर दूसरा जो अलॉय है जिसको हम यूटेक्टिक अलॉय बोल रहे हैं वो दिखना भी क्या होगा, वहाँ पर शुरू हो जाएगा. सो A+ mixture of eutectic will be seen in this portion where the amount of alloying element is less than the specific amount of your eutectic transformation. ऐसे अलॉय जिसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट है उससे कम अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं अलॉइंग एलिमेंट का, ऐसे अलॉय को बोला जाता है हाइपो यूटेक्टिक अलॉय. ऐसे अलॉय को क्या बोलोगे आप, हाइपो यूटेक्टिक अलॉय. और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है हाइपो यूटेक्टिक सिस्टम. ओके, जिसमें जो स्पेसिफिक अमाउंट है उससे जो बी का परसेंटेज है वो कम है. ओके, नाउ सपोज जो हमारा अलॉय है जिसका परसेंटेज 8% होना चाहिए या ZE% होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप उसमें B ऐड कर दो, यहाँ पे आपने कम किया, इससे ज़्यादा जब आप B को ऐड करते हैं तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा अलग नज़र आता है. दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.3 एंड दिस इज़ 0.4. ओके, सो फ्रॉम 0.1 to 2 द अलॉय इज़ इन अगेन लिक्विड स्टेट में है. 2 से 3 में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड. ओके, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड सिंस इसमें अमाउंट B ज़्यादा है, सो तो B का जो फेज़ है या जो B का सॉलिड है वो पहले दिखना शुरू हो जाता है. ओके, सो द सॉलिडिफिकेशन ऑफ B starts in this portion. Okay, as well as there is there is amount of liquid remaining which is to be solidified. अब ये लिक्विड वापस से क्या है, इट इज़ अगेन मिक्सचर ऑफ A+B. A+B का क्या है, वो मिक्सचर है. ओके, नाउ अगेन जैसे जैसे आप उसको और कूल करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसको ठंडा करोगे, एज सुन एज इट पासेस दिस पॉइंट नंबर 3 और यू कैन से इट एज इट पासेस द टेम्परेचर TE, this liquid gets converted into an eutectic alloy which is again a mixture of A+B. ये भी क्या है, मिक्सचर है A+B का. Okay, now from this 3 to 4 the alloy is present in the form of eutectic mixture as well as a separate phase of B. Similarly here the metal alloy is present as a eutectic mixture plus separate phase of A. Okay, ये यूटेक्टिक मिक्सचर भी है और A का फेज़ भी सेपरेटली हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है बिकॉज इधर A का अमाउंट ज़्यादा है, इधर B नज़र आ रहा है बिकॉज इसका B का अमाउंट ज़्यादा है. ओके, अब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे सिस्टम को, ऐसे अलॉय को बोला जाता है हाइपर यूटेक्टिक अलॉय. ओके, ऐसे अलॉय को क्या बोला जाता है, हाइपर यूटेक्टिक अलॉय, या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है हाइपर यूटेक्टिक रिएक्शन. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस vertical line shows the temperature. Okay, this inclination means the temperature is decreasing, this inclination means the temperature is decreasing. These points are melting points of A, this is the melting point of B. So above these two lines whatever mixture is there it is in a liquid state. So इसके नीचे जो भी मेटल रहेगा, इसके नीचे जो भी मिक्सचर रहेगा दैट विल बी इन सम सॉलिड फॉर्म प्लस लिक्विड फॉर्म अप टू दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो TE की हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ तक हमारा मिक्सचर कैसा रहेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड में रहेगा. मतलब वहाँ पर हमारे पास 2 फेजेस प्रेजेंट रहेगी. ओके, और उसके नीचे जो है जैसे जैसे टेम्परेचर आप करोगे तो सॉलिड क्या होते जाएगा और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा सॉलिड बनते जाएगा एंड द फेजेस गेट्स टू सेपरेट आउट. इसीलिए जब आप लिक्विड मेटल को, लिक्विड अलॉय को जब कूल करते हो तो आपको सॉलिड 1 एज वेल एज सॉलिड 2 दिखता है. ओके, नाउ ये जो स्पेसिफिक कंपोजिशन वाली लाइन है, इस स्पेसिफिक कंपोजिशन लाइन से अगर हम कूलिंग करते गए, इसी
परसेंटेज पे अगर हमने कूलिंग किया, स्पेसिफिक टेम्परेचर से कूलिंग किया, तो हमको जो अलॉय देखने मिलेगा इट विल बी प्योर यूटेक्टिक अलॉय। प्योर यूटेक्टिक मतलब उसमें सिर्फ हमको A प्लस B नज़र आएगा। ओके, अब अगर हम हाइपो यूटेक्टिक करते हैं तो उसमें आपको A प्लस B तो नज़र आएगा ही आएगा, प्लस साथ में A का एक प्रो यूटेक्टिक कंपोजिशन भी हमको वहाँ पर देखने मिलता है। मतलब A एक सेपरेट फेज में, साथ में हमारा A प्लस B का मिक्सचर देखने मिलता है। ओके, इसी के साथ में अगर हम हाइपर में जाए तो हमको A प्लस B तो दिखेगा ही दिखेगा, ये एक सेपरेट फेज दिखेगी, साथ में हमको B का भी क्या दिखेगा, एक सेपरेट सॉलिड अलग से नज़र हमको आएगा। ओके, सो हमको याद रखना है कि अगर हाइपर यूटेक्टिक होता है या हाइपो यूटेक्टिक होता है, सो देयर इज प्रो यूटेक्टिक। प्रो मतलब क्या रहता है, जो पहले आता है। सो प्रो यूटेक्टिक A आपको देखने मिलेगा, और अगर हाइपर रहता है तो आपको प्रो यूटेक्टिक B देखने मिलेगा। ओके, हाइपर अगर है तो प्रो यूटेक्टिक B देखने मिलेगा, हाइपो अगर है तो प्रो यूटेक्टिक A हमको वहाँ पर देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट योर यूटेक्टिक सिस्टम। नाउ in next video we'll see about what is partial eutectic system, and before that I'll explain how these alloys look like। ये alloys कैसे दिखते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला A और B प्लस A, ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने बोला A प्लस B, A और B एंड प्लस B, तो ये कैसा दिखेगा ये हम अभी देखेंगे। ओके, नाउ हम अब देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यूटेक्टिक सिस्टम में, जैसे मैंने बोला लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होता है, दो सॉलिड अलग अलग देखने मिलते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि हाइपो यूटेक्टिक अगर है तो उसका परसेंटेज अगर स्पेसिफिक परसेंटेज से कम होगा तो हमको 3 अलग अलग फेजेस देखने मिलेगी, जिसमें A प्लस B रहेगा और प्रो यूटेक्टिक A भी रहेगा। साथ ही साथ में अगर हाइपर अगर है मतलब परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें भी उसी तरीके से 3 फेजेस देखने मिलेंगी। ओके, सो पहले देखते हैं हम यूटेक्टिक अलॉय। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे अलॉय को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस हिसाब से हमको वो माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है मेटल, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ब्लॉक्स में या फिर सर्कल्स में दिखाते हैं। ओके, तो हम सर्कल वाला यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट अलॉय, जिसका आपने कंपोजिशन कितना रखा है, ZE रखा है। ZE मतलब जो मैंने 8% लिखा था ना वो। सो यहाँ पर जो मेटल है 1 to 2 में लिक्विड स्टेट में था, तो वो लिक्विड स्टेट यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी मेटल है इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म, और जब उसको आपको सॉलिडिफाई करते हैं सो वो सॉलिड होने के बाद में कुछ इस तरीके से नज़र आता है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ वर्टिकल, कुछ इंक्लाइंड लाइन देखने मिल रही होंगी। ये लाइंस बताती हैं कि दैट मेटल इज़ इन अ लेयर फॉर्म, मतलब वो कैसा है, लेयर्स में है। सो यहाँ पर ये जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ द पोर्शन विच इज़ A ऑक्यूपाइंग, वो A ने लिया है, और जो ब्लैक लाइंस दिख रही है दैट इज़ दी लाइंस ऑफ B। ये जो भी यूटेक्टिक अलॉय रहता है ये लेयर्स के फॉर्म में रहता है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, उसकी लेयर्स रहती है। जैसे A की लेयर है, उसके नीचे रहेगी B की लेयर, फिर उसके नीचे A की लेयर, फिर उसके नीचे B की लेयर। सो ये लेयर्स के फॉर्म में यूटेक्टिक अलॉय बनता है। ओके, तो A का लेयर रहेगा, जैसे ये वाइट वाला पोर्शन है, सो ये वाइट पोर्शन है A, ये ब्लैक पोर्शन है B, ये वाइट पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन B है फिर से। सो लाइक दिस ये लेयर्स में यूटेक्टिक अलॉय बनता है। ओके, अगर ZE मतलब जो यूटेक्टिक कंपोजिशन है उसको लेके अगर बनाए तो ये ऐसा अलॉय हमको नज़र आएगा। बट अगर इन केस दूसरा टाइप है, मतलब जिसके अंदर लेस देन ZE परसेंटेज है, तो उसमें हमारा पहला जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म एज इट इज़ है। बट जैसे ही आप कूलिंग स्टार्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से, बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ E एंड ग्रेटर परसेंटेज, बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ B एंड हायर परसेंटेज ऑफ A, यहाँ पर हमारा A का जो डेंड्राइट्स है जिसको हम बोलते हैं प्रो यूटेक्टिक A दिखना शुरू होता है।
जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है, दीज आर पॉइंटी ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ट्री के जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये प्रो यूटेक्टिक ए हमारे लिक्विड के अंदर ही क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रो यूटेक्टिक ए। हियर अ फेज इज लिक्विड, यहाँ पर एक लिक्विड फेज है, साथ ही साथ में ए का जो सॉलिड फेज बना है वो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। ओके, सिंस द परसेंटेज ऑफ ए इन दिस स्पेसिफिक हाइपोयूटेक्टिक अलॉय इज ग्रेटर, सो ये जो डेंड्राइट्स है दे कंटिन्यू इन द ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। मतलब एक बार ये सॉलिड बन गया यहाँ पर प्रोयूटेक्टिक ए, सो ये जब हमारा पूरा मेटल सॉलिडिफाई होगा तब भी हमको क्या होता है, वो नज़र आता है। सो दिस इज़ द फेज वेयर द मेटल इज द अलॉय इज़ कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड। ये वो फेज़ है जहाँ पर अलॉय क्या हो गया है, कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो चुका है, जिसको और ठंडा करने पर रूम टेम्परेचर पे ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, सो यहाँ पर लेयर्स बनती है, हमको पता है ए और बी की, बिकॉज दिस इज यूटेक्टिक अलॉय। सो यहाँ पर भी लेयर हमको नज़र आ रही है, जैसे ये ब्लैक लाइन है, ये वाइट लाइन है, ये वाइट लाइन, ये ब्लैक लाइन। सो लेयर्स तो है ही, पर साथ ही साथ में वहाँ पर प्रो यूटेक्टिक ए भी नज़र आ रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से डेंड्राइट्स के फॉर्म में बताया है। सो दिस इज़ योर हाइपोयूटेक्टिक अलॉय, ये है हमारा हाइपोयूटेक्टिक अलॉय। और तीसरा जो है दैट इज़ योर ग्रेटर देन जेड ई की परसेंटेज से अगर ज़्यादा परसेंटेज रहा तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसा पहला है वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर जो डेंड्राइट्स रहेंगे दैट विल बी नॉट ऑफ ए के नहीं रहेंगे, यहाँ पर बी का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो डेंड्राइट्स रहेंगे वो बी मेटल के दिखेंगे। सो यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड को आप सब सॉलिडिफाई करोगे तो लिक्विड फेज से ये प्रोयूटेक्टिक की फेज़ क्या हो जाती है, सेपरेट होती है, इसलिए हमको ये सेपरेट नज़र आती है। इसको और आप जब सॉलिडिफाई करते हो तो लेयर लाइक यूटेक्टिक का स्ट्रक्चर, मतलब ए प्लस बी का स्ट्रक्चर तो दिखता ही है, साथ ही साथ में प्रो यूटेक्टिक बी भी हमको यहाँ पर नज़र आता है। सो दिस इज़ हाउ योर यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। ऐसा अगर स्ट्रक्चर है सो दिस विल बी योर हाइपोयूटेक्टिक अलॉय, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है दिस विल बी योर हाइपर यूटेक्टिक अलॉय। ओके, एंड ऐसा स्ट्रक्चर है सो दिस विल बी योर यूटेक्टिक अलॉय। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूटेक्टिक सिस्टम। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट लेंगे। टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।